Yes. Is the screen visible? I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. See, there are few questions that I wanted to discuss with you. This is the way that questions can also be asked. I mean, for 2 or 3 marks. Where is the power to levy GST obtained from? Through government, parliament, and state legislature. So we have already done it. Remember, some powers are with parliament and some with states, and some are with both parliament and state. So that's what is written here. What do you understand by taxable event under GST? That CGST and SGST, there are two different taxes that are leviable in intrastate supplies, whereas IGST will be leviable on interstate supplies. Yes, this can also be asked. Is reverse charge mechanism only applicable to services? No, it is applicable on both goods and services. I told you yesterday what is reverse charge mechanism. In short, if you want me to repeat that, instead of supplier, the receiver of the goods, that means recipient, will pay the tax to the government. That is known as reverse charge mechanism. So it is applicable for both goods and services. Can composition be availed if taxable person effect interstate supply? No, because I told you अच्छा हम लोगों ने composition के बारे में नहीं पढ़ा है ना detail में. No problem. We can leave this question. In second chapter, we will study in detail about composition scheme. Okay. So in that, you will be able to understand the person who belongs to composition scheme will not be allowed to enter into interstate supplies. Okay. Next, we have, can the ITC be claimed by taxable person under composition scheme? No. ITC cannot be claimed by taxable person under composition scheme. Again, when we will learn composition scheme in second chapter, you will be able to understand this point as well. Okay, this is about composition scheme. Sixth, we have what is the threshold limit for composition scheme? Yes, we have done this when we were doing features of GST. I hope you remember features of GST. One point was there where we could discuss about composition schemes threshold limit. What was the threshold limit of composition scheme? 1.5 crores. For small entrepreneurs, small businessman जो होते हैं और जिनका टर्नओवर ज्यादा नहीं होता है साल भर का, ओके, बिजनेस छोटे लेवल पे होता है उनका, उनको ज्यादा बेनिफिट दिए गए हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के नाम पे. कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, कुछ एडवांटेजेस रहते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी मैं आपको कि इनको क्या क्या बेनिफिट्स अवेल नहीं होते हैं. ठीक है ना. व्हाट आर द टैक्सेस दैट जीएसटी रिप्लेसेस? आपको याद होंगे ना कौन सी ऐसी टैक्सेस है जिन्हें जीएसटी रिप्लेस करता है? हम लोगों ने किया था इफ यू रिमेम्बर. एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, याद है? Custom duty, यस import duty, यस. काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सीए, sales tax. सेल्स टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसे सीएसटी कहते थे, अब वो नहीं लगता है. ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी, एडवर्टीजमेंट टैक्स, टैक्स एप्लीकेबल टू द लॉटरीज, अब ये नहीं लगता. Luxury. हाँ जी, ये सारा कुछ अभी जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है. मतलब ऑल दीज टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन वन टैक्स दैट इज नोन एज जीएसटी. अच्छा, आपको पता है इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी क्या होता है? इनपुट मीन जब हम गुड्स को परचेज करते हैं. वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू in my previous lectures also how to remember input and output, input GST and output GST. Very simple. Input means when I purchase goods, those goods come in my go down, right? In, so input tax. When I pay tax on, when I pay GST on purchases is known as input GST. That input GST can be claimed from output GST. What is output GST? Output GST is the tax, the tax that I need to pay to the government. Or you can remember that way, when I sell the goods,
those goods go out from my godown, out. So when I sell, I receive the tax because I receive the price of the goods. When I sell my product, I receive price together with GST amount, right? Therefore, that amount of GST which I had collected from the customers during the sales, I need to give it to the government. That is known as output GST. Always remember, output GST, input GST can be claimed from output GST. So that's what the next question is. What is GST payable? I can give you a question. Suppose your sales was for rupees 3 lakhs and the tax is applicable 18%, and you had purchased those goods to you have purchased raw material to produce those goods for rupees 1,50,000 and the tax rate is applicable 18%. So what is the final amount of GST payable to the government? This can be the question. So how will you be solving it? This has to be solved as output GST. What is output GST? I've sold for 3 lakhs rupees. Okay. What is GST ka rate? 18%. So 3 lakhs into 18. I think it would be 54,000. Yes, am I right? 54,000. हाँ जी, 54,000 होगा, ठीक है। Yes, उसके ma'am. बाद उसमें से इनपुट माइनस करना है, इनपुट जीएसटी। क्यों इनपुट जीएसटी माइनस करना है? बिकॉज आउट ऑफ 54,000 you have paid a portion of GST to the manufacturer, maybe to the creditor from whom you are purchasing the raw material. Therefore, you need to claim it. You need to get a set off of that particular amount what you have paid it to the creditor. Now, he will be responsible to pay it to the government. Okay, so you need to deduct the amount of input GST. Okay, input means while purchasing from the creditor, while I was purchasing raw material from the creditor, I paid GST at the rate 18% on 1,50,000 rupees. So what is 1,50,000 ka 15%, 18%? How it would be? Can you please do it on calculator? 1,50,000 into 18%. 27,000. 27. So you had collected from customer 54,000. You have already paid to your creditor 27,000. Therefore, what is the net amount that you need to pay to the government? So your answer will be yes. Your answer may it will be I think 27 only, right? 27. Yes, because it is half of 54,000. Because the amount was half. No, 3 lakhs का 1,50,000 था ना half. हमने एग्जाम्पल में वैसा लिया था. ठीक है ना? I mean आपको आइडिया क्लियर है ना? That's it. What is GST credit? If the input GST is more than output GST, then it is GST credit. हम पढ़ चुके हैं ना कि किसके क्रेडिट में से किसको सेट ऑफ करने का याद है? एक स्लाइड में लिखा हुआ था CGST में से सिर्फ IGST का सेट ऑफ ले सकते हैं, SGST का नहीं ले सकते. लाइकवाइज विथ SGST, उसमें से SGST का ले सकते हैं और IGST का ले सकते हैं, बट CGST का नहीं ले सकते. आपको याद होगा वो. और IGST में से पहले IGST को ले सकते हैं, जो अमाउंट क्रेडिट में बचेगा, जेब में बचेगा, तो CGST का ले सकते हैं, और भी अमाउंट जेब में बचेगा तो SGST का ले सकते हैं. क्या सेट ऑफ किसमें से? क्रेडिट में से. क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जब इनपुट इज मोर देन आउटपुट, जब आपने टैक्स ज्यादा पे की है और आपको गवर्नमेंट को कम पे करनी है, तो आपके पास क्रेडिट ज्यादा है ना. आपको समझ आ रहा है? इनपुट ज्यादा है, आपने टैक्स ज्यादा पे करी हुई है और ऑलरेडी पे करी हुई है. गवर्नमेंट को पे जो करना है ना, आउटपुट टैक्सेस गवर्नमेंट को जो फाइनल पेमेंट करना है, अगर वो कम है और आपने ऑलरेडी ज्यादा पे करी हुई है, तो आपके जेब में बचेगा ना उतना. ठीक है ना? तो उसे कहते हैं GST क्रेडिट. ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं. GST क्रेडिट को किस में से कैसे सेट ऑफ लिया जाता है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन CGST, SGST एंड IGST?
अगर क्रेडिट वाला है तो मैं पहले क्रेडिट वाला करवा दूं। हाँ जी है। स्टेट द प्रोसीजर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट। अब आपके पास है ना, आपको आपको क्या करना है, आईजीएसटी का आउटपुट है, उसे किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आईजीएसटी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम पड़ गया, आईजीएसटी में कम पड़ गया, तो सीजीएसटी से हेल्प ले सकते हैं। अगर उसमें भी कम पड़ गया तो एसजीएसटी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। वही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, बस उसका क्वेश्चन है तो मैंने सोचा पहले ये डिस्कस कर लें। ये हमने पहले से किए हुए हैं सारे कॉम्पोजिशन स्कीम को छोड़ के। सो इट इज जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ वॉट एवर वी हैव डन, ठीक है। अभी है, मैंने सेकंड चैप्टर जो बनाया ना, उसमें भी एक रिकैप है, तो फटाक से वो भी देख लेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है ना। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी? I know you are aware about CS and IGST. So what is CGST? It is local sales tax within the state, intra-state. Okay. CGST and SGST are applicable on intra-state, intra intra-state. Only one tax is applicable when a supplier is supplying his goods or services outside the state, which is the case of interstate supply, and that tax is IGST. So this is the main difference between the three. Okay. So between CGST and SGST, what is difference between the two? CGST is applicable on central level. That means replace the taxes of central excise, service tax, central service tax, that way. And SGST will be collected and charged by state government and replaces the taxes which were previously applicable, VAT, luxury tax, entertainment tax. Okay, so this is the difference between all these 3 points. What do you understand by output GST? Output GST is sales, GST on sales, and that amount I need to pay to the government after getting a claim of input tax credit. Okay. Can you adjust CGST and SGST against each other? No, not at all. CGST and SGST against each other? No. Yes. अगर आप IGST में देख रहे हो बैलेंस पड़ा है तो CGST को सेट ऑफ कर सकते हो उसमें से, बट SGST में से नहीं कर सकते। लाइकवाइज सेम विद SGST, उसको CGST में से नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है, पढ़िए आप। CGST credit cannot be adjusted against SGST. On the other hand, SGST credit cannot be adjusted against CGST payable. ठीक है, ये तो समझ गए हम, ये तो पहले भी हमने पढ़ा है। However, both can be adjusted against IGST. That's what I said. Both can be adjusted against IGST payable. Such the sequence of the adjustment is. अभी आगे देखो, अगर आपने IGST में से क्लेम करना है तो सबसे पहले तो IGST से ही क्लेम करेंगे ना। कुछ बचता है तो CGST से क्लेम करेंगे, और भी बचता है तो SGST से। मतलब दोनों को आपस में नहीं कर सकते हैं, CGST और SGST को। This is what the question is all about. Okay. The last one is we have what is registration limit in GST for goods. Registration limit क्या है आपकी? अगर goods होंगे तो 40 lakhs और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे तो 20 lakhs. थ्रेशोल्ड लिमिट पूछा है ना रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप गुड्स में डील करते हो, देखो मैंने हाईलाइट किया, मैं हाईलाइट कर रही हूँ गुड्स को। अगर यहीं पे क्वेश्चन हो सर्विसेज का तो आप कैसे लिखेंगे? कैन एनीबडी रिमेंबर एंड टेल मी अबाउट दैट? व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लिमिट इन जीएसटी फॉर सर्विसेज? I mean the person who provides services. Nobody remembers. Oh God. Yes. What is the limit for services? Registration limit. Nobody remembers. मतलब आप लोग कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो. I'm not going to take your lectures then.
if you're not revising, it will not help me go forward. I mean to go for another chapters. None of you remember. 40 students are present. None of you remember. It's a subject that is very vast. You need to revise it again and again. Okay. So for services, it is registration limit is 20 lakhs, and for northeastern states is 10 lakhs. Fine. So now second chapter. Before starting the second chapter, the second unit, I would like you to have a recap of whatever was done in chapter number 1. See, GST is leviable on supply of goods and services across India, including Jammu and Kashmir. See, why am I writing this in bracket, including Jammu and Kashmir? Because previously it was excluding Jammu and Kashmir. It was GST was applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. But now it is inclusive. Therefore, specifically in the bracket, I have written it for you so that you can understand that now it is inclusive. Okay. It is a single tax on supply of goods and services. No other taxes will be applicable. It is only single one tax that is applicable. Right from manufacturer to the consumer. So no excise duty on the manufacturer, no custom duty, or I mean no sales duty on the wholesaler and retailers. No. Right away, there is only one tax which is applicable from the beginning to the last chain, manufacturer to the consumer. Okay, and from each stage, the wholesaler, manufacturer, retailer, each stage can claim ITC from their output tax liability. Okay. GST is destination-based consumption tax, very important. GST is destination-based tax, wherever the goods are consumed and wherever the goods are reaching at a final stage, that particular state or state will be liable to pay the burden of GST. I mean, they will be actually taking the burden of GST. Okay, benefits of SGST, UTGST will accrue to the consuming states. Okay. Yes, also known as one nation, one country, one tax. Very good. Are you okay with this format? I mean, should I show the presentation format? Or are you okay with this? Is it okay? आपको Yes, चाहिए ma'am. तो मैं प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में करूंगी ना तो थोड़ा बड़ा दिखेगा वो स्क्रीन तो ऐसे चलेगा कि प्रेजेंट करूं चलेगा ना ठीक ओके सेंटर एंड स्टेट विल इम्पोज टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज साइमल्टेनियसली जैसे जैसे जिसकी जिसकी टैक्स होगी वो कलेक्ट करते जाएंगे ठीक है सेंटर कैन नाउ इम्पोज ऑन सेल्स ऑफ गुड्स विद स्टेट्स एंड स्टेट कैन नाउ इम्पोज टैक्स ऑन सर्विसेज देखो पहले ऐसे नहीं होता था पहले क्या होता था सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस है ना फिक्स होती थी जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर सकता था बट अब स्टेट भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि अगर इंट्रा स्टेट होगा तो two taxes will be applicable SGST and CGST so half of the portion will be collected by center and other half will be collected by state are you understanding the concept therefore state can also impose the taxes of previously which was laid down by I mean collected by center and vice versa with center similarly with the center can also collect the taxes on sales of goods but previously it was done with I mean levied by state government okay so intrastate supply of goods and services में आपको भरना पड़ता है CGST which is collected by central government and SGST or UTGST. SGST in case of normal states and UTGST in case of union territory states.
payable to the central government. That means central government will collect it or union territory government will collect it. Okay, respectively. Where they are consumed, मतलब जहां पे ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम हुए हैं ना, वो स्टेट को कलेक्ट करना है. मतलब समझो महाराष्ट्र में गुड्स को कंज्यूम किया गया, ठीक है, गुजरात से आए महाराष्ट्र में, तो डेस्टिनेशन क्या है, महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करनी है, किससे, महाराष्ट्र के कस्टमर से. आई बात समझ में. पर भरेगा महाराष्ट्र का कस्टमर, लेकिन गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम है गुजरात के सप्लायर का. ओके, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये होता है आपका आईजीएसटी विच इज पेबल डायरेक्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, और ये कब लगता है, जब टू स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, बिटवीन द टू स्टेट्स. ये हमने पहले से ही सब पॉइंट की हुई है, जस्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. सेंटर विल लेवी एंड एडमिनिस्टर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी. अच्छा, सेंटर कौन सी टैक्सेस को लेवी मतलब चार्ज कर सकता है सेंटर. एक सीजीएसटी को चार्ज कर सकता है और एक आईजीएसटी को चार्ज कर सकते हैं. ओके, एंड स्टेट और यूटीजीएसटी विल लेवी state tax and union territory tax respectively. Okay. Import will be, of course, this is very important point. Import will be treated as interstate between one state and another state. Therefore, IGST will be applicable with BCD. BCD means basic custom duty. Okay. However, in GST, export will not be treated as export will not be charged GST because it will be treated as zero rated supply. Why zero rated supply? Because the destination is not in India, no, it is going outside India. Therefore, it is not consumed in India, and GST is consumption based destination tax. ठीक है. The rates of GST are divided into 4 categories: 5, 12, 18, and 28. Of course, 0% is also there, but they are writing down only 4 categories because 0 is, I mean, yes, it is a category, but then they have just written those numbers which are not counted as 0, where no GST is applicable. वो नहीं लिखकर उन्होंने 4 कैटेगरीज बताई है जिसमें GST चार्ज करी हुई जाती है. 5, 12, 18, 28. GST will be calculated on supply of goods. Supply should be there, which is transaction value. Transaction value क्या होता है, जिसमें आप गुड्स को बेचते हो, वैल्यू ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके जब हम गुड्स को बेचते हैं ना, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू. ठीक है. A registered person is entitled to take credits of input tax paid from output tax subject to following restrictions. कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, पहले हमने डिस्कस करी हुई है. आईजीएसटी को किस में से यूटिलाइज कर सकते हैं, आईजीएसटी में से पहले, और कुछ बैलेंस बचता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी. अगर सीजीएसटी को यूटिलाइज करना है तो पहले सीजीएसटी में से कर सकते हैं और बैलेंस होगा तो आईजीएसटी. यूटिलाइजेशन अगर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का करना तो पहले अपने में से करेंगे, एसजीएसटी यूटीजीएसटी. एसजीएसटी एसजीएसटी में से करेगा, यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी से करेगा. सेट ऑफ पहले फर्स्ट ऑर्डर, एंड देन कुछ अमाउंट बच जाएगा तो हम लोग आईजीएसटी का पेमेंट भी सेट ऑफ कर सकते हैं. जब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं ना, इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम्स है ये जो मैं समझा रही हूँ ये पॉइंट्स. ठीक है, तो जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तब तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगी कि अच्छा सेट ऑफ ऐसे करना है और सीजीएसटी को एसजीएसटी में से नहीं करना. ठीक है, ये पॉइंट आएगा तब आपको इग्नोर करना है, सीजीएसटी को एसजीएसटी में से सेट ऑफ नहीं करना है, और आईजीएसटी होगा तो करना है ऐसे. तो जब हम सम्स करेंगे ना तब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो. ठीक है, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था डीमेरिट गुड्स की लिस्ट क्या होती है. सो जस्ट फॉर यू ऑल, इट इज नॉट इन द सिलेबस. आपको ये
लिस्ट कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था अल्कोहलिक ड्रग्स वगैरह होते हैं। सारी लिस्ट तो ऑफकोर्स मुझे भी सर्च करनी पड़ी, ठीक है। तो ये है आपकी लिस्ट जिसे हम कहते हैं डीमेरिट गुड्स, जिनके ऊपर एक्स्ट्रा क्या कह सकते हैं उससे, टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, मतलब टुगेदर विद जीएसटी, ठीक है ना। लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड चैप्टर, my second chapter is levy and collection of GST. Before I start, let me announce one thing. 6 minutes are left for the meeting. So, I mean, I want to ask, not an announcement, but I want to ask you, you want break or right away after 6 minutes we can join for the another meeting? You guys want break? Continue. फिर ब्रेक नहीं मिलेगा, हाँ, क्योंकि फिर मैं कंटिन्यू लूंगी 1 o'clock तक, 12:50 तक। तो अगर आपको ब्रेक चाहिए ना, तो ये लेक्चर के बाद मैम आप ब्रेक मत दो, 11:40 को 12:40 को लेक्चर वाइंड अप कर देना। ओके, वो भी ठीक है, चलेगा, सबको चलेगा क्या ऐसा? आई डोंट नो ना, सबको चलेगा कि नहीं, बिकॉज लेक्चर के हिसाब से तो ब्रेक है। नहीं मैम, ठीक है, एकदम ठीक है। ओके फाइन। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, चलो अब इस लेवी एंड कलेक्शन में देखो, लेवी मतलब चार्ज एंड हु इज टू कलेक्ट द जीएसटी, ठीक है। अब थोड़ा ना टेक्निकल चैप्टर है, प्लीज थोड़ा मतलब अगर नींद आ रही है तो पहले से ही आप लोग रेडी हो जाओ, बिल्कुल नींद नहीं करनी है। और थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा, ओके, ज्यादा ड्राई चैप्टर नहीं है, पर थोड़ा है। सो प्लीज, स्टार्टिंग में तो है, पीछे बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट्स है कुछ जो आपको सीखने में मजा आएगा, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे लगेगा कि ओ माय गॉड इट्स ऑल थ्योरी एंड बोरिंग, तो वैसा फील नहीं होना चाहिए। प्लीज आप इंटरेस्टिंगली सुनो, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ, और मैंने पीपीटी इस तरीके से बनाई हुई है कि थोड़ा तो एटलीस्ट उसको शॉर्ट में और बिल्कुल क्रिस्पी लिखा है, जैसे क्रिस्प करके लिखा है, जैसे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, छोटे वर्ड में सब समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लेवी एंड जीएसटी ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी अंडर सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 9। ये सेक्शन 9 किसका है? लेवी एंड कलेक्शन। कभी भी याद रखो, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ना सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। सेक्शन 9 में जो भी लिखा हुआ है वो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में लिखा हुआ है। So section 9 is of CGST and SGST Act, of course 2017 में ये एक्ट बनाया गया था, उसके अंडर में ये सेक्शन 9 है। एंड सेक्शन 5 सेम IGST Act 2017 में बनाया गया था, ठीक है ना। आर चार्जिंग सेक्शंस ऑफ पर्पस ऑफ लेवी और जीएसटी। अब हम ये पूछ रहे हैं ना, लेवी, लेवी मतलब चार्ज, चार्ज होते हैं, तो चार्जिंग के सेक्शंस बनाए गए थे, सेक्शन 9 और सेक्शन 5। सेक्शन 9 में सीजीएसटी और एसजीएसटी को डाला गया, और सेक्शन 5 में आईजीएसटी को डाला गया। अब अगर हमने सेक्शन 9 पढ़ लिया तो आईजीएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जहां आपने सीजीएसटी 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 लिखा ना, वहां आईजीएसटी आईजीएसटी कर देंगे, ठीक है। जहां आपने विद इन द स्टेट लिखा था, वहां बिटवीन द स्टेट्स कर देंगे, बस यही फर्क है, दैट्स इट। हाँ, रेट्स एप्लीकेबल अलग अलग होते हैं, वो तो गुड्स के ऊपर डिपेंड है ना, कौन सी कैटेगरी में ये गुड्स आते हैं। गुड्स कैटेगरी 1 में आते हैं तो 0%, गुड्स कैटेगरी 2 में आते हैं तो 5%, है ना। वो तो गुड्स पे डिपेंड करते हैं ना, उनकी कैटेगरी रेट, जीएसटी का रेट डिसाइड करना। वो सीजीएसटी और आईजीएसटी के रेट्स नहीं होते, वो गुड्स के रेट्स होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। CGST and SGST shall be levied on intra-state, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर चैप्टर में लगभग मैंने डाला हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में, फिर रिवीजन में भी डाला था, और फिर अभी भी हमने यहाँ पे डाला है। सीजीएसटी और एसजीएसटी किस पे एप्लीकेबल होगा? लेवी किस पे होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, और आईजीएसटी इंटर स्टेट। ये दिख रहा है आपको, इंटर स्टेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा एक पिक्चर है जिसमें ना एक ये पिक्चर को मैंने डाउनलोड किया है, और ना
कॉपी पेस्ट किया, लेकिन इस पिक्चर में ना एक मिस्टेक है. लेट मी सी हु कैन पॉइंट आउट द मिस्टेक. हु कैन पॉइंट आउट द मिस्टेक. अब मैं बताऊं उससे पहले आप मुझे बताइए, मैं देखूं किसको कॉन्सेप्ट समझा है. कॉन्सेप्ट समझा है ना तो मिस्टेक फटाक से पता चल जाएगी. मैडम इसमें सेक्शन 7 IGST लिखा है, CGST और SGST आना चाहिए. कहाँ क्या सेक्शन क्या नहीं. हाँ सेक्शन 7 और हाँ सेक्शन 5 आना चाहिए. ओके. और वहां पे सेक्शन 9 आना चाहिए. ओके. और क्या मिस्टेक है. इंटरसेट और इंट्रा में दिया है. हाँ फिर से बताओ, इंटर और इंट्रा में क्या साफ दिख इंटर रहा है. हाँ हाँ बोलो हाँ. बोलो. इंट्रा में इधर 2 अलग अलग स्टेट दिया है, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा हाँ है, और इंटर में इधर एक स्टेट में ही हो रहा है. ओके बस वेरी गुड. कौन बता रहे हैं, लेट मी सी. कौन है ये. आयुष शुभम बता रहे थे. शुभम गिरी. यस वेरी गुड शुभम, गुड जॉब. आप ना देखो यहाँ पे, बस मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो इंटरस्टेट है ना, ये इंटरस्टेट उसकी एक्सप्लेनेशन है ना उसने इधर डाल दी है. आपको दिख रहा है. और जो ये इंट्रा स्टेट है ना, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, देखो बस इधर ही जा रही है. ये जो एरो है ना, ये एरो दिख रहा है, ये एरो इधर ही है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में. ये तो इंट्रा स्टेट है. ऊपर उसने सही लिखा है इंट्रा स्टेट, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन इधर चली गई है. देखो क्रॉस में दिख रहा है आपको. और इसकी एक्सप्लेनेशन ये देखो, महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र डीलर लिखा भी हुआ है महाराष्ट्र. और ये एरो इधर जा रहे गुजरात में, मतलब सप्लाई महाराष्ट्र से गुजरात में हो रहा है ना, तो ये तो इंटर स्टेट हो गया. और उसके नीचे इंट्रा लिखा है, मतलब ये जो है ना वो इंटर स्टेट, इसका एक्सप्लेनेशन इधर है. एरो को देखो मेरे समझिएगा, आई मीन मेरे कर्सर को. ठीक है ना. तो ये मिस्टेक है इस पिक्चर में, आई नो, बट स्टिल मुझे आपको ये बताना था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है. बट प्लीज आप लोग ये ध्यान देना कि इंटर और इंट्रा के बीच में क्या फर्क है. ओके. तो 9 सबसेक्शन 1 बात करता है इंट्रा की, और 5 सबसेक्शन 1 बात करता है इंटरस्टेट की. तो आप देखोगे यहाँ पे महाराष्ट्र